اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو، خواہش، دعا، تمنا، اس کا میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورۃ بقرہ کی 144 نمبر آیت کے حوالے سے، اس کا بلکہ تھوڑا سا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نارا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ میں اس پر ہی صرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے ترجمہ جو ہے یہ وہی قرآن جو سعودی عرب والوں کا۔ آگے، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے۔ متوجہ تو ہو چکے ہیں آپ پہلے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو جو نبی کی ہر نبی کی اللہ کی طرف ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے۔ نبی سوتا بھی نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں سویا جب ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا دل اللہ کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے، کبھی غافل نہیں ہوتا۔ تو خیر، یہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ، اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اس سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش، تمنا، دعا، آرزو یہ تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ خاص اس لیے متوجہ ہو رہے تھے کہ وہ جو یہ قبلہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی بجائے یہ قبلہ کعبہ جو ہے مکہ میں، جو یہ قبلہ بن جائے ہمارے لیے۔ پہلے کیا تھا؟ یہ بات بھی کلیئر نہیں ہوتی کہ پہلے کیا تھا۔ کہ پھر یہی ہم کہتے ہیں نا، بیت المقدس پہلے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کچھ صاحب بتا دیتے ہیں جی رکن یمنی سے اتنے میل ادھر، تو مدینے سے ادھر اتنے میل۔ یہ مطلب نہیں ہے ادھر سے کوئی لاہور سے یا بہاول نگر سے بتا دے کہ یہ اس سمت ہے، بیت المقدس ہے اور اتنے میل دور ہے۔ یہ نہیں، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، مطلب اس کو ٹویسٹ نہ دیا جائے کہ پہلے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، یا ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ ادھر سے بدل دیا جائے ہمیں اس مکہ میں جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف ہمارا رخ کر دیا جائے۔ پہلے کس طرف کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف، یوم القدس جو مناتے ہیں ہم، اور کہتے ہیں مسجد اقصی بھی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں اس میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو بیت المقدس سے ایک پورا شہر ہے، پورے شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پورا شہر قبلہ تھا؟ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک بات۔ دوسری، یہ خواہش کرنا کہ بیت المقدس سے ہٹ کے بیت اللہ بن جائے، تو پھر یہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کیسے ایک شہر سے ہٹ کے ایک جو کمرہ ہے مکعب نما کعبہ، اس کو قبلہ بنا دیا جائے۔ یہ بھی مطلب سلیقہ کرینہ نہیں بنتا جملے کا، دعا کا، تمنا کا، کہ اس شہر سے ہٹ کے ہمارے لیے جو وہ شہر قبلہ اگر بنا ہوا ہے، تو یہ اس کعبہ کو ہمارے لیے قبلہ بنا دیا جائے۔ اس سے ہم یہی مراد لیتے ہیں نا، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس میں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شہر ہے وہ بیت المقدس، یہ نہیں ہو سکتا، مناسب ہی نہیں لگتا کہ شہر اگر قبلہ ہے تو اس کو کہا جائے کہ شہر سے ہٹ کے یہ ایک کمرے کو قبلہ بنا دیا جائے۔ شہر سے ہٹا کر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مکہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ مکہ تو قبلہ نہیں بنا، مکہ کے اندر جو بیت اللہ ہے وہ قبلہ بنا۔ یہ میں اصل میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، میں یہ باتیں کیوں کرتا ہوں؟ اس طرح کی باتیں میں کرنے کا مقصد ہے
मैं एक तो बिलमूम कहता हूँ कि जो दीन इस्लाम हमारे पास पहुंचा है ये ठीक नहीं है, ये मसनूई है, ये बनाया हुआ है रवायात के ताने बाने से उससे बना हुआ है। और बिलखसूस जो बात कर रहा हूँ ये जो तहवील किबला की कहानी हमने बनाई है, ये बिल्कुल फॉल्स कहानी है, फॉल्स स्टोरी है, मन गढ़ंत स्टोरी है। ये हकीकत में ऐसा है ही नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वो भी मैं अर्ज कर दूंगा सर दस्त में। ये कहना इसमें ये जो जो बात मैं नुमाया करने के लिए, उजागर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कर रहा हूँ वो ये है कि वो पूरा शहर है बैतुल मकदस, और ये इधर जो मांगा जा रहा है वो एक कमरा है, एक इमारत है। अब आगे थोड़ा सा देख लें, अगर वो वहां चलें जी बैतुल मकदस नहीं, जिक्र तो कहीं नहीं है यहाँ, हमने बनाया नहीं जी, वो नहीं था, कुछ और था, क्या था वो बता दे। मस्जिद अक्सा थी। मैंने वो भी अर्ज किया था कि अगर मस्जिद अक्सा शहर के अंदर है तो मस्जिद तो काबा नहीं बन सकती। आखिर उसके लोग भी किसी तरह मुंह करके नमाज पढ़ते होंगे, जो जो उस मस्जिद का किबला था, तो वो क्या था वो बताएं। मैं समझता हूं कि ये बैतुल मकदस हम जिसे कहते हैं ये अरबी का लफ्ज है, और इसका अबरानी जुबान में जो शहर का नाम है यरूशलेम है। ये ऐसे नहीं तर्जमा इसका बात जैसे हम नमाज के बारे में कहते हैं सलात ये अरबी का है और नमाज फारसी का। वहां अरबी जो है सलात उसका मानी फारसी में नमाज नहीं बनता। सलात अरबी का लफ्ज है और उसका रूट जो मादा कहते हैं स्वाद लाम वाव है। आप देख लें तो जितने भी मानी आप करेंगे सलात के रूट उसके मुताबिक होंगे, उसके मानी उसमें से निकलेंगे। जितने भी अल्फाज आगे बनते जाएं उसके 60 बने 70 बने, अरबी का ये कायदा। लेकिन ये मानी इस तरह नहीं है, उसका यहाँ बिल्कुल मानी ही बैतुल मकदस है यरूशलेम अबरानी जुबान में, और उसका जब तर्जमा अरबी में करेंगे तो वो जो बैतुल मकदस होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी तकदीस फिर किस वजह से हुई। ये यरूशलेम, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, इसकी तकदीस हैकल सुलेमानी से होती है। ये बैतुल मकदस हैकल सुलेमानी की वजह से हुआ। तो फिर क्या मस्जिद अक्सा का महराब जो था वो हैकल सुलेमानी की तरफ मुंह करके नमाज था, उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे मस्जिद अक्सा वाले? नहीं मेरे भाइयों, कैसे हो सकता है। फिर ये बात मैं जो पहले करनी थी वो कर दी। अब जो थोड़ी सी सम्मत इसकी जो मुतय्यन की गई है वो भी मैं बात कर देता हूँ। यहाँ नमाजें फर्ज हुई, नमाज तो या आपने मिराज के मौके पर 5 नमाजें फर्ज हुई, उससे पहले भी नमाज का जिक्र है कुरान पाक में, सलात का जिक्र है। उस वक्त कैसे मुसलमान नमाज पढ़ते थे, क्या था उसमें, क्या इससे कोई मिलती जुलती थी, कितने वक्त पढ़ते थे? जब ये उसके आगे जुजियात जो हैं वो क्या थी, कुछ नहीं जिक्र, ना कुरान पाक में उसका पंजगाना, ना कुरान पाक में उसका जिक्र, ना उसकी जुजियात का। मिराज के वक्त जो जितनी भी रवायात हैं उसमें कोई जिक्र नहीं। 5 का जिक्र है उसमें, 5 का तोहफा दिया गया। अगर पहले चीज थी ही नहीं फिर दे दी गई तो फिर तो आप कहें जी तोहफा नई चीज एक दे दी गई हमें, ये हमें मिल गई मिराज के मौके पर। तो जब कुरान में पहले इसका जिक्र है सलात, उसकी हयात क्या थी, उसकी सूरत क्या थी। ये 3 साल मक्का 10वीं नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज होती जैसे कहा जाता है, वो एक अलग कहानी है, किस्सा है। वो 10 नबवी में 3 साल मजीद मक्का में रहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके। अर्ज कर चुका हूं ये नहीं बनती बात बिल्कुल ही। फिर आप मदीना शरीफ में चले गए तो फिर उस वहां जाके भी उस तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते थे बैतुल मकदस की तरफ। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ सम्मत मुतय्यन किसने की कि बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, क्योंकि कुरान पाक में इसका जिक्र नहीं है। नमाजों का सलात का जिक्र है, पंजगाना का जिक्र नहीं है, आगे जुजियात का जिक्र नहीं है, सम्मत का रुख का जिक्र नहीं है, किस तरह मुंह करके नमाज पढ़नी है। और मिराज शरीफ के मौके पर भी नहीं है जिक्र, वहां सिर्फ 5 नमाजों का जिक्र है और
रुख का कोई जिक्र नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म फरमाया कि आपने बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है, इसका कोई जिक्र नहीं, मेरी नजर में नहीं गुजरा। आपको अगर मालूम हो तो आप मुझे बता दें कि उस वहां अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि आपने बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी। फिर इससे यही बात साबित होती है कि ये जो सलात जो 5 फर्ज हुई थी, वो रुख जो उसका मुतय्यन किया, एक तो पहले कि मिराज से पहले जो नमाज थी सलात थी, उससे पहले सलात थी, बाद में भी सलात ही रही। वो जो पहले थी वो क्या करते थे मुसलमान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उसकी हायत क्या थी। आगे सम्मत की बात आ गई, तो इस सारी बात से ये मैं कहता हूँ साबित होता है कि ये सम्मत आपने खुद मुतय्यन फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मकदस की तरफ, जैसी कहानी है उसी से यही सवाल बनता और यही बात साबित होती है कि ये मुतय्यन आपने खुद फरमाई थी। अगर आपने ये मुतय्यन खुद फरमाई थी बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, तो फिर ये बार बार आसमान की तरफ क्यों देखते थे आप इसके लिए बार बार आसमान की तरफ मुतवज्जो क्यों होते थे, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो क्यों होते थे तहवील किबला के लिए, कि उस किबला को जिस पर हम पढ़ रहे थे उसको छोड़ दो और इस किबले पर हम आ जाएं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है, यानी कि बैतुल्लाह की तरफ जो मक्का में है। तो ये सम्मत जब आपने खुद ही ये मुतय्यन फरमाई थी तो फिर खुद ही इस पर मुंह कर लेते, वहां फिर अल्लाह से इजाजत लेने की जरूरत क्यों पड़ी। ये बार बार आसमान की तरफ आपको चेहरा मुबारक कुरान कह रहा है, ये तो गलत नहीं हो सकता। आप कुछ मांग रहे थे, कुछ मुतवज्जो हो रहे थे आप। तो बुनियादी तौर पर मेरे भाइयों मैं ये 2 बातें ही आपके सामने हाईलाइट करके नुमाया करके रखना चाहता हूँ कि ये जो दुआ या तमन्ना या ख्वाहिश ये ऐसे बनती नहीं है कि शहर को किबला हटा के एक कमरे को जो किबला बना दिया जाए। और दूसरा इसकी सिमत जो है कि इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, ये अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया। ना मिराज के मौके पर कोई रिवायत मिलती है कि अल्लाह ने कहा हो, ना कुरान पाक में ऐसा है। और नबी अल्लाह की ताबेदारी करता है, अल्लाह की वही की ताबेदारी करता है। सूरह यूनुस की 15 नंबर आयत में बार बार कई हवालों से उसका हवाला दे चुका हूँ कि नबी उसी की ही इत्तबा करता है, पैरवी करता है जो उस पर वही होता है। ये सूरह यूनुस की आप 15 नंबर आयत देख लें। तो मेरे भाइयों ये मैं आपको बताना चाहता था। हकीकत में क्या है, हकीकत में ये सारी कहानी है फर्जी बनाई हुई। हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो आप बड़े दिल गिरफ्तार थे इस काबे को छोड़ने पर। ये रवायत भी बताती हैं कि आप दिल गिरफ्तार थे, आप चाहते थे कि ये हमें दोबारा मिल जाए, हमें इसकी दोबारा तवल्लियत कब्जे में आ जाए हमारे, जो हमारे हाथ से अब निकल गया है। ये तमन्ना थी आपकी। ये आगे तमन्ना उसको बताया जा रहा है कि आप मुतवज्जे रहें इस तरफ, ये आरजू ठीक है, इस तरफ आप हर वक्त मुतवज्जे रहें, हम आपको दे देंगे, आपके हवाले कर देंगे जल्दी। ये एक खुशखबरी सुनाई जा रही थी। मेरे भाई बस ये मैं बात करना चाहता हूँ और करता जाऊंगा तो जो असल बातें हाईलाइट करने वाली हैं वो पीछे रह जाएंगी। ये जो दूसरा पारा शुरू ही इधर से होता है, अन करीब नादान लोग कहेंगे कि जिस किबला पर ये थे इससे से इन्हें किस चीज ने हटाया, किस किबला पर थे भाइयों, इसी किबला बैतुल्लाह पर थे। जब ये हिजरत करके गए तो फिर नादान लोगों ने कहेंगे, या अल्लाह ताला फरमा देगा अन करीब ये नादान लोग कहेंगे कि इनको क्या हो गया है कि इन्होंने अपने इस किबले को काबा को छोड़ दिया है, ये हिजरत करके मदीने क्यों चले गए। ये बात है इसमें, ये जो नादान लोग हैं कहेंगे इस बैतुल्लाह को क्यों छोड़ दिया इन्होंने। पता था उन लोगों को, क्रैश को, दूसरों को ये मुकद्दस मुतबर्रक जगह ये बैतुल्लाह की अहमियत से, इसकी तकदीस से वो लोग आगाह थे कि जितने भी अंबिया कराम आए हैं वो यहाँ आते रहे हैं, उनके सामने इनकी तकदीस थी, पता था। तो फिर वो कहते थे कि ये नबूवत का भी दावा कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
और उनके पैरोकार जो मुसलमान, और उन्होंने काबा भी छोड़ दिया। इस काबा को, इस किबला को क्यों छोड़ दिया इन्होंने? ये है वो किबला। बस यही बात है, बात लंबी होती जाएगी भाई। ये दो बातें मैं उसी आयत के हवाले से कि हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं, ये बात कि अगर खुद ही सम्मत मुतय्यन की थी तो फिर क्यों बार बार देख रहे थे? और साबित यही होता है कि सिम्मत नमाज की जो कि जिस तरह कहा जा रहा है कि ये पहले वो आपने खुद ही मुतय्यन फरमाई थी, तो फिर किबला शहर को छोड़ के एक छोटा कमरा, एक बड़ा कमरा, जितना भी कमरे की तरफ, एक इमारत की तरफ को किबला बनाने की आरज़ू तमन्ना करना। तो बस मेरे भाइयों, मैं ये बात आपको बताना चाहता था, कहना चाहता था। पता नहीं मैं अपनी बात किस हद तक मैं आपको समझा चुका हूँ, समझा सका हूँ या नहीं, क्योंकि हम इतने उस फॉल्स स्टोरी में इतने पुख्ता हो गए हैं कि हम कोई और बात सोचते ही नहीं, सुनना ही गवारा नहीं करते। अजीबोगरीब कमेंट्स देते हैं, करते हैं, कोई बात नहीं, तकलीफ होती है, दिल जारी होती है, तकलीफ उठानी पड़ती है बंदे को। जो बात करता है उसकी कीमत उसको अदा करना पड़ती है, जो लोगों से हट के बात करता है कुछ। तो चले, बहरहाल अल्लाह हिम्मत दे मुझे और लोगों जो हक की बात करते हैं, तो वो अब हक की बात करते रहें, लोगों की दिल आज़ार बातों पर ना जाएं। तो बस भाई, ये मैं अर्ज करना चाहता था कि ये एक बिल्कुल फाल्स कहानी जो बनाई गई है, ये गलत है। आप सही की तरफ आए तो फिर ही हम कहीं सही रास्ते पर जा सकते हैं या चल सकते हैं। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।